Hello all. Today we are starting with a new chapter, that is linked list. Now we have seen many data structures. So linked list is a form of data structure in which let's say array के जैसा continuous allocations का जरूरत नहीं होता है. So जो arrays का disadvantage होता है that you need a contiguous space to store in the database. Linked list is not like that. Linked list में we basically have nodes and a pointer to the next node. Node matlab the original location where we are storing the data, which is divided into two fields, that is data part and the pointer part, or say the next node. जब भी लिंक लिस्ट होगा अपने पास एक स्टार्ट पॉइंटर होता है. दैट स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड व्हिच डिनोट्स कि वो लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. As I said, that node will be divided into two halves. First is the value that has to be stored, and the next column will be a pointer to the next node. यानी ये फर्स्ट वैल्यू के बाद सेकेंड वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है उसका जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड के यहाँ पे ये पॉइंटर फील्ड में होगा. सिमिलरली आफ्टर finding that location, when you reach to the second value will point to the third will point to the fourth node, and so on. So in this way you can always have a sequence of values connected to each other without needing an array for contiguous storage. For example, ये रहा data structures का linked list का part over here. See, if let's say I have to store a word hello, so this is the data part, this is the next part. It says the start pointer is pointing to 1, मतलब ये जो linked list है वो start हो रहा है 1 से, जहाँ पे पहला letter है H. Now after finding the first letter, I'll go to the next field and I'll see कि next word कहाँ पे, that is 4. So I'll come to location 4, वहाँ पे मुझे next word मिलेगा. Then I'll search for the next location, that is 7. तो वहाँ पे मुझे next letter 8, यहाँ पे next letter 10, यहाँ पे next letter, and that is -1. -1 indicates null value. Null matlab that is the end of the list. So this is how you traverse a linked list, where you have two fields, data and next field. Data field में you always store the value. Next field में you store the address of the next value. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इस लिंक लिस्ट में मतलब एक ही साथ दो लिंक लिस्ट कैसे प्रिवेल कर सकता है. सो एग्जाम्पल इज ओवर हियर. सी, यहाँ पे रोल नंबर्स दिया हुआ है. बायोलॉजी के एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और ये नेक्स्ट फील्ड है. काम वही कर रहा है. रोल नंबर में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. नेक्स्ट फील्ड में हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं. लेट्स से इफ आई हैव a list or say memory structure where I have two data stored. First is information or say roll number of students, those are in biology. Second is number of students, those are in computer science. Now I know that the start for biology is from location number 1. So मुझे ये पता है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोकेशन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोकेशन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है. सो ऑल यू नीड टू नो इज वेयर द लिंक लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम. Now because I know that biology starting from location 1, तो ये रहा biology का first information student का. Next information I'll get on node number 3 which is mentioned in the next field. ये रहा. So this is again biology student, that is roll number 3. Then that is location number 8. उसके बाद location number 11, फिर location number 13, location number 15 and that is the null point. यानी ये हो गया biology students का traversing. Let's say कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का ट्रैवर्सिंग करना है तो हम कैसे करेंगे. रोल नंबर्स यहाँ पे है. सो दैट इज द फर्स्ट वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू विल बी अवेलेबल एट लोकेशन 5. थर्ड वैल्यू इज अवेलेबल एट लोकेशन 7, location 10, location 12, and that is the null value. So this is how you traverse a memory or say traverse a list where you are having more than one linked list. सो लिंक लिस्ट वर्सेज एरे में वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी, जैसे मैंने बोला था कि एरेज के जैसा लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस एलोकेशन जरूरी नहीं है. अभी एरेज में कैसा है, मुझे अगर 10 वैल्यू स्टोर करना है तो मेरे पास 10 कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, लाइक वन बिलो द अदर और से वन आफ्टर द अदर. बट दैट इज नॉट द केस विद लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में अगर आपका स्टोरेज एक यहाँ पे है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, इट इज स्टिल फाइन बिकॉज वी आर हैविंग अ पॉइंटर नोड टू द नेक्स्ट नोड और से पॉइंटर फील्ड टू द नेक्स्ट नोड विच इज गिवन. सो रैंडम स्ट्रक्चर्स भी अगर रहेगा तो भी लिंक लिस्ट के वजह से वो स्टोरेज जो है, वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा.
दिस इज द सेम एग्जाम्पल यू आर गिवन. द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर ऑलरेडी एक लिस्ट है उसमें अगर एक नया वैल्यू ऐड करना है, सो हाउ डू वी ऐड दैट वैल्यू. सो सी यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द बायोलॉजी स्टूडेंट, स्टार्ट्स विद लोकेशन 1 एंड सो ऑन ट्रैवर्सिंग एंड वी कम टू नो दैट 15th is the last location. Now let's say I have to add a new student's record. तभी ये जो कलर्ड दिख रहे हैं ग्रेइश वाले, वो फील्ड वो जो है वो ब्लैंक है, यानी वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है. तो अभी मुझे कोई एक और नया स्टूडेंट डालना है, लेट्स से जिसका रोल नंबर इज S11, सॉरी S12, 11 तक है अपने पास, 12 से स्टोर करना है. सो मेमोरी में क्या करेगा कि कहीं पुराना वैल्यू कोई डिलीट हुआ है, इफ एनी नोड इज एम्प्टी, सो इट विल स्टार्ट सर्चिंग द लिस्ट फ्रॉम टॉप. तो हमें पता चला कि ये जो लोकेशन 4 है दैट इज एम्प्टी. तो जहाँ पे लोकेशन 15 पे नेक्स्ट में -1 था, we will just change it to 4 because the new record what we are storing is at location number 4. क्योंकि ये लिस्ट पहले यहाँ पे खत्म होता था, लेकिन अभी अपने पास एक और डेटा आया है S12 का, so that has to be reflected. So you cannot put -1 over here. It shows that this is the end of the list. But after adding S12, this cannot be the end. That's why instead of -1 you will put 4. क्योंकि आप नया जो वैल्यू है वो लोकेशन 4 पे स्टोर कर रहे हो, उसका जो भी मार्क्स है वो आप इनपुट दोगे एंड देन उसके नेक्स्ट फील्ड में आप -1 डालोगे, showing that this is the last record. So that is how you change the data in the given linked list. Now the question over is how to find the free spaces in the memory. तो फ्री स्पेसेस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं अवेलेबल. सो ये जो अवेलेबल पॉइंटर है दैट विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट फ्री स्पेस अवेलेबल इन द मेमोरी. जैसे मैंने बोला था ऊपर कि ये जो फ्री स्पेसेस है स्टार्टिंग से यानी टॉप से शुरू होती है हमेशा, तो अवेलेबल पॉइंटर क्या करेगा, जो फर्स्ट फ्री स्पेस है उसको पॉइंट करेगा और जो फ्री स्पेसेस है उसका अपना लिंक लिस्ट होगा. So if you go at 4, you will understand that the next free space available is given by this number, that is 6. Next free space is 9. Next is 14. तो डेटा का अपना लिंक लिस्ट होता है जो स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करता है टू शो के कहाँ से वो स्टार्ट होता है. अवेलेबल पॉइंटर का अपना लिंक लिस्ट होता है विच शोज द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस एंड द कॉन्सिक्वेंट अवेलेबल स्पेसेस. So this was all about the linked list you should know. Next we start with singly linked list. Now, singly linked list is a normal linked list जो हम implement करते हैं जिसमें दो ही fields होता है, एक होता है data और एक होता है next field. That's it. Data field में हम value store करते हैं, next field is nothing but a pointer to the next node. तो इसमें जो important होते हैं वो है ये algorithms. Okay, so let's say how to traverse. So traversing में कैसा होता है, it says set ptr equals to start. यानी ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम जो पॉइंटर यूज करेंगे उसे हम स्टार्ट पे रखेंगे सो दैट आई नो वेयर द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम. सो पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट मतलब जो पीटीआर है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा. रिपीट स्टेप्स 3 and 4 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल. यानी जब तक ये जो पॉइंटर है वो नल पे नहीं पहुंच जाता, यानी यहाँ पे x का मतलब होता है नल. When you store it in tabular form, you write it -1. When you show it graphically, you put it over x. So it says जब तक ये PTR जो है वो नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक steps 3 and 4 रिपीट करना है. So क्या है वो steps? That step says apply process to PTR of data, set PTR equals to PTR of next. यानी PTR अगर इसको स्टार्ट करना है, ट्रावर्स करना है, तो स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इसको. सो PTR ऑफ डेटा क्या है उसका वैल्यूज देख लो या चेक करो या रिट्राइव करो. देन PTR ऑफ नेक्स्ट फील्ड में जो है वहां पे जाओ और जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको एक्सेस करो. सिमिलरली वहां का डेटा लो, उसका नेक्स्ट लोकेशन ऐड करो एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ यू ट्रैवर्स अ लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू प्रिंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक्ड लिस्ट. अभी नंबर ऑफ नोड्स कितना है वो काउंट करना है. सो लेट्स से काउंट इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि इनिशियली हमको 0 रखना है. एज यूजुअल पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, ये हमेशा आएगा क्योंकि स्टार्ट को पॉइंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि फर्स्ट नोड कहाँ है लिंक लिस्ट का. रिपीट स्टेप 4 and 5 while ptr is not equals to null, यानी जब तक वो एंड ऑफ द लिस्ट लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता